only football side. So 3 मीटर होगा और तो गल ये फिर आ गया 5 टाउन में ये वाला 2 टाउन में ओके एक 131 ओरिजिनल आंसर గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వేదికను అలంకరించిన మా గౌరవ సిపి సార్, అదేవిధంగా అడిషనల్ డీసీపీ సార్, తర్వాత మా ఇక్కడికి సమావేశమైన ప్రజలందరికీ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫున నమస్కారాలు సార్. పాతకాలంలో వస్తే తర్వాత రండి మళ్ళీ రండి అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో భాగంగానే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. కార్డన్ సెర్చ్ వల్ల ఏంటంటే మన దగ్గర ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు కానీ అనుమానిత వ్యక్తులు కానీ చేయడానికి ఈ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో భాగంగా మేము కార్డన్ సెర్చ్ మా సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మన ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా అనుమానితులు కానీ లేకపోతే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు, ఏమైనా దొంగ బండ్లు కానీ సో ఇట్లాంటి ఏమన్నా వేరే ఏమన్నా సర్ప్రైజ్గా చెక్ చేస్తారు. కాబట్టి మీకు కూడా లోపల నమ్మకం వచ్చేసి పోలీసు మీద నమ్మకం కలిగి మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తారో కూడా మీ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైనా ఉంటే కూడా మీ ఏరియాలో ఉన్న సమస్యలు ఉంటే కూడా మీరు ఫ్రీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. क्या डिफिकल्टीज है क्या है भी बोल सकते हैं. डिप्टी मेयर 5 और एडिशनल एसीपी साहब और एसीपी साहब, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट और मौजूदा शहर, सबको मेरी तरफ से सलाम. में कई मेन रोड्स पे साहब आपसे पता चल रही है, उस तरह से भी यहीं पे अगर क्या है मालूम है, आप लोग अगर कोई ऐसी मुहिम अगर इख्तियार करते हैं जहाँ पे बच्चों को रात भर रोककर सुबह पेरेंट्स पे बुलाकर काउंसलिंग करके अगर छोड़ते हैं, हम तमाम ही कारपोरेटर्स इंशाल्लाह हम बराबर आपको ताउन करेंगे. इस तरफ भी आप तवज्जो दें ताकि शहरियान निजामाबाद बिल्कुल सुकून से अपनी रातें गुजार सके. वरना रात में बिल्कुल क्या बगैर साइलेंसर के गाड़ियां और ये होटलों के पास जो हुजूम रह रहा है पान के डब्बों के पास, उससे नींदें हराम हो चुकी है. इस जानिब आप तवज्जो दें. ये जो मुझे मौका दिया गया शुक्रिया. पहले बच्चों के टाइम में ऐसा उनको काउंसलिंग करके अच्छा पूरा क्या पड़े तो उसका मकसद रहता और उनको कल के दिन हेल्प होता. वो हमारा मिशन है सर. अब फ्रेंडली पुलिस के बारे में आप सबको मालूम है कौन सा बुरा है कौन सा. ये इंटरमीडिएट एज बच्चों को बोले तो उनको क्या तभी समझ होता. फिर भी हमारे तरफ से कोशिश कर रहे और कोई मिले तो भी उनके पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग कर रहे तो रिजल्ट तो आता. 100% तो नहीं तो भी थोड़े तक तो रिजल्ट होता. और कोई रिपीट करे तो उनको ला कानून उसका काम कर देता. वो भी काम कर रहे. बहुत शुक्रिया. और बहुत చేసినందుకు మొట్టమొదటిగా మన అందరి తరఫున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈ కార్డన్ సెర్చ్ వల్ల కొంతమంది బాధపడతారు. ఏంది బండి పేపర్లు లేని వాళ్ళు, తర్వాత ఏవైనా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇల్లీగల్గా ఏమైనా ఫేర్గా ఉండే జనాలకి ఇది ఒక మంచి అవకాశము. దీనివల్ల లాభాలు ఏముంటాయంటే సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బండికి పేపర్స్ లేకుండా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసి ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదు. దానివల్ల వాళ్ళ కుటుంబం కూడా టోటల్ ఫైనాన్షియల్గా బ్యాక్వర్డ్గా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనివల్ల లాభాలే ఉన్నాయి కానీ నష్టాలు మాత్రం లేవు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారము పేరెంట్స్కి అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే విషయం ఏంటంటే, ఎవరైనా మీ మైనర్ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి వెహికల్ మీరు ఇయ్యకండి దయచేసి. ఎందుకంటే దానివల్ల వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ చేస్తే ఈ కాలంలో కొత్త కొత్త చట్టాలు వచ్చినాయి. ఆ చట్టాల వల్ల పేరెంట్స్కి ఇంప్రిజ్మెంట్ అంటే జైలు శిక్ష కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు మైనర్ పిల్లలకి
డ్రైవింగ్ కోసము వెహికల్స్ ఇవ్వకండి. థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू. ఇప్పుడు एडिशनल एसीपी श्री रामरेड्डी सबको मालूम है 5 जगह हो गए अभी. अब क्या बोले तो इसमें अपना कुछ सताने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, किसी को जानबूझ के सताने के लिए नहीं कर रहे, खाली घर में सर्च कर रहे हैं. और सर्च पार्टी में भी टीम अच्छा रख के पूछ रहे कोई नया लोग है क्या, कोई है क्या, सर्च करके पेपर गाड़ियां नहीं है तो गाड़ी में पेपर है कि नहीं, पेपर से नहीं है तो यहाँ लाके हम लोग डंप कर रहे हैं. डंप करने के बाद भी आपके पास कागज आरसी बुक सब कुछ है तो ऐसे सब है तो आपका गाड़ी छोड़ देंगे. ऐसा डरने का कोई बात नहीं है. खाली इसमें फ्रेंडली पुलिसिंग में इसमें हमारा क्या है कि नया लोग कोई आए और कुछ नुकसान भी कर सकते अपने को. और चोरी के गाड़ियां लाके विदाउट नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नहीं है सो वैसे गाड़ी भी यहाँ चलते रहते हैं. और चोरी का गाड़ी कहीं से भी अपना नेबरिंग बहुत नजदीक है अपने महाराष्ट्र से, इधर से क्रिमिनल्स भी आ सकते हैं. इसलिए इसमें आप लोग आपकी मस्जिद में भी, टेम्पल्स में भी, कहीं भी कोई नया लोग आए तो, और घर में भी कहीं नया लोग आके यहाँ रहे तो भी जरा हम लोगों को कम से कम हमारा एसआई को भी, अमीर साहब को भी, सर्किल इंस्पेक्टर साहब को बता दिए तो अच्छा रहता है. आप लोगों को मालूम है दूर दूर से महाराष्ट्र से बहुत चोरियां भी बहुत हो रहे. घर में कोई लाद करके चले गए तो घर में क्या चोरियां भी हो रहे. तो नेबर वालों को बता देना चाहिए. सब हम लोग गए, गांव गए, 3 दिन गए, कुछ फंक्शन लिए गए, फिर आए तो चोरी हो गए, लाख ब्रेक हो गए बोल के बोल रहे. इसके हम लोग नाइट पेट्रोलिंग भी चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बीट भी चल रहे हैं. आप लोग भी जो एलर पर्सन जो ये अपने कारपोरेटर्स है और वार्ड मेंबर्स है और यहाँ वीडीसी भी है, विलेज डेवलपमेंट कमिटीज भी है, ये कमिटी लोग भी रह के मदद करे तो फ्रेंडली पुलिस भी होते. खाली पुलिस ही कम साफ करना नहीं, पुलिस को सब पब्लिक मदद करे तो अच्छी क्लाइंट ऑर्डर भी अच्छा कंट्रोल होता है. आपको मदद रहे तो हम कुछ कर सकते हैं. अगर पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इन्वॉल्व होके आप लोग सब बोले कि. और एक बात क्या बोले तो ये सीसी कैमरा बहुत कम है यहाँ अपने गली में भी. अब साफ देखिए, साफ देखने के बाद कुछ जगह सीसी अच्छा जंक्शन में भी सीसी कैमरा, मस्जिद के सामने और गुरुद्वार के सामने, अच्छे टेम्पल के सामने, अच्छे जंक्शन में अपने नेहरू सहितम प्रोग्राम है हमारे डीवी साहब का. उसमें आप लोग भी अपने खुद के घर के सामने भी ये सीसी कैमरा इंस्टॉल करना जरूरी है. आप लोगों को मालूम है ये सीसी कैमरे से बहुत चोरियां, जो बड़े बड़े चोरियां भी एक सीसी कैमरा रहे तो अपने क्या पूरा ही कोई भी आए तो भी कुछ चलो तो भी अपने को मालूम होता है. और बाकी इसके बारे में हमारा सीपी साहब आपको डिटेल में बताए. మొన్ననే ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ కొత్తగా మీ సర్కిల్ కు చార్జ్ తీసుకున్నాను సిఐగా. సో ఈ సందర్భంగా మీ అందరితో పరిచయం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఇదే సందర్భంగా ఇప్పుడు మన ఏరియాలో అయితే ఇప్పుడు మనం కార్డన్ సెర్చ్ పెట్టామో ఈ కార్డన్ సెర్చ్ మొత్తం కూడా సార్ తోటి మొత్తం ఏరియాలో మొత్తం తిరుగుతూ కొన్ని జంక్షన్ లో చాలా వరకు సీసీ కెమెరాలు అవసరం ఉన్నది. రేపు ఏదైనా ఎవరైనా అఫెండర్ వచ్చినా కానీ మనకి ఈజీగా అందులో క్యాప్చర్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాలు అనేవి మనకి అబద్ధం చెప్పం, అందులో పర్సన్స్ కూడా కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వేరే వాని మీద మనం ఏదైనా దొంగతనం అయితే ఆ ఇంటి పక్కన మీద వాని మీద మనం వీడియో తీసింటాడు సార్ నైట్ పూట వీడియో తిరిగిండు అనే అనుమానం కూడా మనకి రాకుండా ఉంటుంది. కరెక్ట్ పర్సన్ మనం చేస్తాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సీసీ కెమెరా ఈక్వల్ టు 100 మంది కానిస్టేబుల్ తో సమానం ఉంటుంది. సో మనకి ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరిగినా ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినా కరెక్ట్ ఎవరైతే చేసాడో వాడిని మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో ఈ మెయిన్ జంక్షన్ వల్ల మనందరం కలిసి ఒకసారి మీటింగ్ కండక్ట్ చేసేసి సీసీ కెమెరాలు పెట్టడానికి నేను సైతం అనే ప్రోగ్రాము, తర్వాత కమ్యూనిటీ సీసీ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి అదొకటి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఒక 20 మంది దాకా అందులో గిరాయకుంటుంటే వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్ గా ఒక కమిటీ ఏర్పడి అపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా మనం సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుంటే అపార్ట్మెంట్ కి ఎవరు వస్తున్నారు, కొత్త వ్యక్తులు ఎవరు వస్తున్నారు, తర్వాత ఏమేమి జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి కూడా మీరందరూ సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసేసి ఎవరైతే వచ్చే వ్యక్తులు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను సైతం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కూడా మనం సీసీ కెమెరా అలవాటు చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో పక్క ఇంట్లో దొంగతనం అవుతుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సీసీ కెమెరాలో దాంట్లో ఐడెంటిఫై అవుతుంటాడు. సో దీంట్లో ఒకరికొకరు అవేర్నెస్ రావాలి. సో మనం ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన ప్రాపర్టీ కూడా ఈ దొంగ వస్తువుతో కాకుండా మనం సీసీ కెమెరాల ద్వారా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనకు తొందరగా రికవర్ అవుతుంది. కరెక్ట్ పర్సన్ కూడా మనం పట్టుకోవడానికి తొందరగా ఇదైపోతుంది. సో దయచేసి మనకి ఈ కార్డన్ సెర్చ్ సందర్భంగా మీ అందరినీ కలిసినందుకు సంతోషంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సీసీ కెమెరాల గురించి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మీటింగ్ కండక్ట్ చేసేసి ఎక్కువ మన ఏరియా కూడా సెక్యూరిటీ ప్లేస్ గా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి తోడ్పడతారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. बहुत अच्छा पब्लिक का कोऑपरेशन मिल रहा है. तो हिंदी में बात करें या तेलुगु या मिक्स? ओके, तो अच्छा कोऑपरेशन सबका मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए.
ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉलोनी या कोई पर्टिकुलर एरिया में किया जा रहा है। जैसे कि बताया, सबसे पहले हम लोग मिर्ची कंपाउंड एरिया से करे थे, उसके बाद हमने आरमूर टाउन में किया है, उसके बाद मुबारक नगर में हुआ है, हमालवाड़ी में हुआ है, नवी पेट में हुआ है, पीछे रेंजल में हुआ था, उसके बाद अब निज़ामाबाद की बारी थी इसलिए आज यहाँ हुआ है। तो ऐसा भी चलता है कि एक एक बार एक एक ACP को एक उनको दिया जाता है कि भाई आपके एरिया में कहाँ पे करने की ज़रूरत है। ऐसे तो कि पर्टिकुलरली कि कॉर्डन सर्च हो रहा है तो यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स होंगे, ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्डन सर्च का जो मकसद है वो बेसिकली है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिलाना। नंबर 1, इतनी तादाद में जैसे अभी पुलिस का मोबिलाइजेशन है, हर रोज नहीं होता है, करीब 200-300 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, जो एक ऑफिसर लेवल पे मैं हूँ, एडिशनल DCP ACP, इतने सारे अफसरान एक साथ पब्लिक से मुलाकात करना, रूबरू होना, वो भी रोज रोज नहीं होता। तो हमें एक ऐसा मौका मिलता है। नॉर्मली आप में से कई लोग होंगे जो आते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, ACP ऑफिस में, मेरे ऑफिस में कभी ना कहीं मुलाकात हुई होगी, कभी किसी ईद पे, गणेश में, कहीं राह चलते मुलाकात हुई होगी। लेकिन सबके साथ एक बार मिलने का जो मौका है वो ऐसे हमें मिलता है, पर्टिकुलरली हम लोगों को, जो मैं हूँ, एडिशनल DCP वगैरह जो हैं, तो वो एक हमारे को एक मौका मिलता है। वो मीटिंग जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा महकमा है, इसमें एक हमारा जो मेन है पब्लिक सर्विस है। अब पुलिस का आप रोल देखें तो अगर किसी बच्चे से पूछो कि पुलिस क्या करती है तो बोलते हैं क्या, बच्चे क्या सिखाते हैं, चोर पकड़ती है, ठीक है। इनफैक्ट हालात तो ये है कि बच्चा स्कूल जाने से मना करते भी लोग वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रात भर ड्यूटी में रहे। किसी भी तरह की कभी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई प्रोसेशन हो, गणेश हो, तो आप देखें पुलिस वाले हमेशा साथ में होते हैं। अगर घर में कुछ मियाँ बीवी के बीच में नहीं जम रही है तो बात जो है कभी ना कभी पुलिस स्टेशन पहुंच ही जाती है। या किसी का कुछ हो गया, मिसिंग कुछ केस हो गया, घर में से कोई नहीं मिल रहे हैं, तो फिर भी पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच जाती है। या जैसे कि आपने बोला कि कुछ बच्चे वगैरह जो हैं, फहीम साहब ने बोला कि रात को ज़रा बिना किसी वजह के बेमकसद घूम रहे हैं और अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ पे भी पुलिस की काउंसलिंग की बात आती है। तो पुलिस का रोल खाली पुलिस है, क्राइम होगा तब पुलिस का, वैसा नहीं है। तो पुलिस के और भी कई काम हैं, जैसे कि आपने देखा कि हर जगह पे किसी तरह का इशू हो, किसी भी तरह का, कभी ना कभी उसमें पुलिस का रोल आ जाता है। मान लीजिए कहीं इससे पहले हमने देखा कुछ प्रोग्राम्स हुए, अभी क्या बोलते हैं, रैतो बंधु प्रोग्राम हुआ था, उसमें पुलिस बंदोबस्त की जरूरत पड़ती है। इससे पहले हमने देखा नोटबंदी का सिलसिला चला था पिछले साल, हर बैंक में पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया था। तो हर जगह में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे जैसे अभी इन्होंने कहा इंश्योरेंस की बात हो, एक्सीडेंट की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, हर जगह में कहीं ना कहीं पुलिस का एक रोल आ जाता है। तो हमारा जो एक सिस्टम है, आई मीन पुलिस वाला, हर कहीं ना कहीं पे पुलिस की कोई ना कोई जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें अब क्या जरूरी ये है कि जो हम काम करते हैं उसमें हमारे को पब्लिक को फीडबैक मिले। जैसे कि आप लोग यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ पे बात करें कि भाई ऐसा करें तो बेहतर रहेगा, वैसा करें। तो एक हमारा जो सिस्टम है ये 2 वे है। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि पब्लिक की सर्विस करना, एक अच्छा सिस्टम लाना जिसमें कि पब्लिक को सहूलियत रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो, और बेसिकली हमारा मकसद है परेशानियां दूर करना, ना कि बढ़ाना। तो वो तभी पॉसिबल है जब फीडबैक हमें मिले कि कैसा है, आप लोग क्या समझते हैं। अभी ट्रैफिक के बारे में कई लोग फीडबैक देते हैं। डायल और कमिश्नर होता है हर मंडे को 10:30 से 11:30, फोन आते हैं मुझे, लोग बोलते हैं साहब वहाँ ट्रैफिक थोड़ा करें तो अच्छा रहेगा, इस एरिया में करें तो बेहतर रहेगा। कुछ लोग बताएं कि साहब कई इशूज ऐसे भी होते हैं कि हमारे दायरे में नहीं होते, अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, कि वैसा करें तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, हम उन डिपार्टमेंट वालों को आपकी बात आगे बढ़ा, फीडबैक मिलना बड़ा ज़रूरी है। उसी तरह से जैसे पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग है, तो पुलिस स्टेशन में कैसा है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कैसा वहाँ पे बर्ताव किया जाता है, कैसा वहाँ पे माहौल है, बिठाया जाता है नहीं, तमीज से बात की जाती है कि नहीं। आप जाते हैं, हर आदमी चाहता है जैसे आप डॉक्टर के जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, किसी भी दफ्तर में जाएं कि भाई हमारा काम जल्दी से जल्दी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा कीमती नहीं है, समय ज़्यादा कीमती है, टाइम जो है, वक्त नहीं है किसी के पास। ज़्यादा देर किसी को रोक नहीं सकते बिठा के, क्योंकि हर एक को काम है, किसी को स्कूल जाना है, नौकरी जाना है, बैंक जाना है, कुछ ना कुछ काम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हर आदमी कहीं ना कहीं बिजी है। तो अगर कोई पुलिस स्टेशन हमारे आता है तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि भाई 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उसका जो प्रॉब्लम है उससे हम बात करके उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। अगर कुछ केस वगैरह दर्ज होता है उसमें जल्दी से जल्दी एक्शन हो, क्योंकि अगर आप इंसाफ करते भी हैं लेकिन वो 2 या 3-6 महीने के बाद होता तो उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो एक फटाफट सिस्टम बड़ा जरूरी। दूसरी बात, जैसे कि हम पहले देखते थे, फिल्मों में दिखाया जाता है कि भैया सब खत्म हो जाता है और लास्ट में पुलिस पहुंच रही है।
तो वो जो है कि वो सिस्टम चेंज करना बड़ा जरूरी है। वो एक कुछ हद तक वो शायद पहले सही भी था और कुछ हद तक अब वो सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन अब हमारा देखिए 100 डायल नंबर है, डायल 100 आप करें तो 100% आपको 5-10 मिनट के अंदर पुलिस की टीम जरूर पहुंचेगी। और पहुंचने के बाद पहली चीज है कि पुलिस पहुंचना, तो वो हमारा फर्स्ट गोल वो है। तो डायल 100 के अंदर हर रोज इनफैक्ट मुझे सुबह एक मैसेज भी आता है कि भाई हमारा किस किस पुलिस स्टेशन में कितने मिनट में कितने फोन है और कितने बजे पहुंचे, उसका एवरेज टाइम निकाला जाता है। तो अगर कहीं 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर होता है तो मैं कंसर्न एसएचओ को फोन करके पूछता हूँ कि भाई आपके 25 मिनट क्यों लगे। तो अगर वो बोले कि साहब बड़ी दूर है, गांव 15 किलोमीटर है, तो गांव का रास्ता है, ठीक है। लेकिन अगर टाउन में पता चले भाई 2 टाउन में फोन है, बरकतपुरा में 25 मिनट लगे, तो फिर उसको जवाबदेही देनी पड़ती है। तो एक सिस्टम जो है हमारा, वो भी एक फीडबैक सिस्टम है ना हमारा। अब ये सिस्टम हुआ क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हमारे पास टैबलेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पुलिस ऐप्स हैं। आपने देखा होगा सबके पास मोबाइल हैं आजकल, हर तरह के ऐप्स आते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ इंटरनल ऐप्स हैं कि पूरे उसमें सिस्टम जो है मॉनिटरिंग होता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि साहब मैं पहुंच गया था स्पॉट पे, क्योंकि वो एक जीपीएस के थ्रू, हर पुलिस की गाड़ी में जीपीएस लगा है, उसके थ्रू नोट होता है, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होती है नंबर पर। तो मेरा ये जो रिक्वेस्ट है कंसर्न, अब थोड़ा आगे आ रहे दोनों इंस्पेक्टर, लोकल एसआई सीएसए की जो डायल 100 का रिस्पांस है वो इम्प्रूव और होना चाहिए, और उसमें किसी तरह की, क्योंकि अगर कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी पहुंचना, पुलिस एक इमरजेंसी सर्विस है जैसे मेडिकल सर्विस है, 5-10 मिनट के अंदर वो जरूर पहुंचना चाहिए, कम से कम समय में वहां पहुंचना चाहिए, नंबर 1। तो वो एक सिस्टम नया शुरू हुआ है जो आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट हम डेली उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। तो वो जमाना कि भाई पुलिस लास्ट में आएगी, वैसा वो जमाना नहीं रहा। दूसरी बात कि जैसा पुलिस स्टेशन में जैसा रिस्पांस होता है, तो कैसे पब्लिक से कैसे बात की जाती है और किस तरह उनकी बात नोट की जाती है, उस सब के बारे में खास कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करी गई हैं। वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं। हर एक पुलिस स्टेशन में रिसेप्शनिस्ट को जो है, रिसेप्शन कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, हवलदार जो भी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है किस तरह से बात करना है, क्या करना है और किस तरह का पब्लिक से रिस्पॉन्स हो। क्योंकि जो आदमी स्टेशन आता है वो पहले किसी परेशानी में होता है, तो उसको एक अलग तरीके से, एक बीमार आदमी से और एक नॉर्मल आदमी से बात करने का तरीका अलग होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, आदमी ऑलरेडी परेशान है, थोड़ा सा भी अगर आप उसको नहीं करेंगे और परेशान हो जाएगा। तो जो आदमी पुलिस स्टेशन आता है किसी न किसी तकलीफ में ही आता है, किसी के घर में कुछ बुरा हुआ, कोई झगड़ा हुआ, परेशानी है, तो उसको एक अलग केयर देनी पड़ती है। उसको वो एक जैसे नॉर्मली बात करते हैं वैसे नहीं, अलग केयर देनी पड़ती है। उसको भरोसा दिलाना बड़ा जरूरी है, जो कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है कि भाई आप चिंता मत करो, हम हैं, हम देख लेंगे ये। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग्स दी गई हैं और हमारी तरफ से काफ़ी ब्रीफिंग भी चल रही है। तो अगेन वो सिस्टम भी हम लोग, मेरा रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर और एसआई से, ये 2 टाउन पुलिस स्टेशन में भी कभी ना हमारा जो है रिस्पॉन्स बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जैसे मैंने कही, जैसे एडिशनल डीसीपी साहब ने कही कैमराज के बारे में, अगर आप देखेंगे कभी समय से हमारे पास एक बहुत अच्छा हैदराबाद पुलिस का वीडियो है, अपने एसीपी साहब हैदराबाद में बहुत साल काम कर रहे हैं, तो उसमें करीब ऐसे 25-30 केस हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्ट हुए। और ये एक हैदराबाद पुलिस ने एक वीडियो बनाया। अगर हमारे निजामाबाद की बात कहो, परसों पिछले हफ्ते 2 रॉबरीज हुई थी आरमूर रोड पे। वो दोनों रॉबरी आपकी यहीं रोड में, वीकली बाजार में एक दुकान में कैमरा लगे, उस कैमरे की वजह से 2 केस डिटेक्ट हुए। वो कैमरा क्या हुआ कि रॉबरी हुई, किसी ने मोबाइल फोन छीन लिया, धमका के रात को 8-9 बजे हाईवे पे रोक के 3-4 लोगों ने मिलकर मोबाइल छीन लिया। वो मोबाइल लेके दुकान में बेचने आए, तो बेचने आए तो दुकान के सीसीटीवी में उस आदमी का फोटो रिकॉर्ड हो गया और उसके थ्रू वो केस जो है वो डिटेक्ट हो गया। तो देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा जो एक मोबाइल शॉप ने शायद अपने लिए लगाया कि भाई मेरे दुकान में चोरी ना हो, लेकिन उससे किसी और के केस का जो है वो डिटेक्ट हो गया। इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ महीने पिछले साल कोटगिरी में एक बच्चे का किडनैपिंग का केस हुआ था, काफी पेपर में आया था। वो बच्चे को जब रेस्क्यू किया गया, वो सीसीटीवी कैमरे के थ्रू, वहाँ पे कोटगिरी में 3 जगह पे कैमरे हैं। एक प्राइवेट मकान में कैमरा है, एक किसी बैंक में और एक मस्जिद है। वो 3 कैमरे में तीनों जगह पे फुटेज है। 4 साल का बच्चा है, उठा के उसको भेज दिया गया था जहीराबाद में। बच्चे को, 4 साल के बच्चे को जहीराबाद में भेज दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए, वो 3 कैमरे में तीनों फुटेज आया, वो आदमी आइडेंटिफाई हुआ, उसका हम लोग पब्लिक से शेयर करें और बाद में वो आदमी नेल्लोर गया, कहीं का था, वहां से पकड़ा गया। उसके बाद वहां से एसपी को हमको फोन आता है कि भाई ये आदमी हमारे भी 2 केस में वांटेड है। बाद में 2 बच्चे और जो है रेस्क्यू किए गए कर्नाटका से। तो 3 कैमरे की वजह से 3 बच्चों, 3 बच्चे नहीं है, 3 परिवार, 3 जो फैमिलीज हैं, उनके लिए देखो कितना फायदा हुआ। नहीं तो वो बच्चों का सोचिए, किसी के भी साथ हो सकता है, बच्चा उठा के ले गया, उनको कोई मतलब नहीं किसका बच्चा, किस मजहब का बच्चा हो, किस जगह का बच्चा है, कोई मतलब नहीं है। वो ले लेते हैं और सड़क में वहां पे भीख मांगने के लिए बच्चे को भेज देते हैं। लेकिन वो कैमरे की वजह से 3 जानें बच गई। तो देखिए वो कितना बड़ा एक अच्छा काम है। दूसरी बात,
ऐसे और कई वाक्य हैं। येरगटला में एक बैंक में एक रॉबरी का ऑफेंस हुआ था, तो कुछ दूसरे बिहार से आके कुछ लेबर किसी राइस मिल में काम करे, जाते जाते उनको 2 दिन पहले वो फोटो के बेसिस पे उनको महाराष्ट्र की पुलिस उनको अरेस्ट कर लिए, 5 लोगों को, 5 या 6 ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में नांदेड़ में उनको अरेस्ट किए, क्योंकि ये जो फोटो वगैरह जो कैमरे में आती है वो शेयर होती है हमारा महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लोकल हमारे पुलिस वगैरह से वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग चलता रहता है। तो एक कैमरा होने से, जैसे बताया कि कैमरा 24/7 चलता है। अब आदमी क्या है, घर में लाखों रुपए कैश रख लेगा, अच्छा खासा क्या बोलते हैं ज्वेलरी वगैरह रख लेगा, लेकिन कैमरा नहीं करता। एक 5-10 हज़ार का कैमरा जो है, अब बैंक से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, इस तरह की चीज़ें हैं, आई मीन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या ऐसे होटल्स हैं, कुछ दुकानें हैं, या कहीं भी हर आदमी अगर ये सोचे कि भैया अगर मेरे घर में एक हो, मेरे घर के बाहर आते जाते, तो वो कितना, एक मैं आपको बताता हूँ, पीछे मुझे एक कैमरा दिख रहा है बात करते करते, तो बड़ी खुशी की बात है जिसने भी लगाया वो पोल के ऊपर। तो मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। मैं जब हैदराबाद में डीसीपी था, तो एक घर में 2 गाड़ियाँ थी, और एक ऑडी थी और एक BMW थी, कम से कम 30-40 लाख की गाड़ी होगी। उस घर में चोरी हुई और 30 या 40 लाख की गाड़ी थी उस घर में, 2 गाड़ियाँ थी उस फैमिली के पास, घर में एक भी कैमरा नहीं था। तो मैं उनको बोला आप इतना पैसा गाड़ी पे खर्च रहे हैं, एक 5,000 का एक कैमरा लगा लेते तो कितना आसान हो जाता, शायद चोर देख के ही चला जाता कि यार यहाँ कैमरा लगा, यहाँ नहीं कहीं और ट्राई करते हैं। हैदराबाद में आज की डेट में 2 लाख से ज़्यादा कैमरे हैदराबाद सिटी में, सब मिला के, पब्लिक के और उनके मिला के। तो एक CCTV कैमरा है, यहाँ हमने देखा मार्केट एरिया में कई जगह अच्छी बात है कैमरे हैं, तो एक कैमरा लगाने से घर में, मार्केट में, कहीं भी बहुत ज्यादा, कई जगह पे कम्युनिटी CCTV में लोग मिलके, पूरा मोहल्ला मिलके, पूरे 25-30 लोग घर मिलके, 50 घर मिलके 2 कैमरे लगा लिए जंक्शन में। ये अगर जंक्शन में सोचिए अगर कुछ कैमरे लगते हैं तो कितना कुछ हम लोग इस पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो अब वो जमाना आ गया कि चेन स्नैचर, इससे पहले यहाँ भी चेन स्नैचिंग के केस काफी हुए, अब काफी कम हो गए हैं, कैमरे तो यहाँ भी लगे हैं, लेकिन और ज्यादा जरूरत है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक पर्टिकुलर कैमराज वगैरह को पर्सनली अपना आप अपने घर में लगाइए। आपके घर में आपको लगता है कि यार मेरे घर में बहुत जो है क्या बोलते हैं गोल्ड वगैरह बहुत है, लेडीज के ज्वेलरी ज़्यादा है, तो आप लगाइए। या आपकी दुकान है, आप होटल चलाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ कुछ कैश रखता हूँ मैं, 20-50 हज़ार 1 लाख पड़ा रहता है, या कुछ भी ऐसी कीमती चीज़ है, टीवी है, कुछ ऐसा है मेरे पास है, तो एक आप कहीं दुकान के बाहर लगा लीजिए ना, कि अपनी सीक्रेट। जैसे वो मोबाइल वाले ने कैमरा लगाया तो ना सिर्फ उसकी दुकान बल्कि उसकी वजह से 4 केस डिटेक्ट हुए, 4 केस डिटेक्ट हुए उसकी वजह से। तो ये एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उसको थोड़ा सा सीरियसली इस बात के बारे में सोचिए। नेक्स्ट जो है कभी भी किसी तरह का, जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में बोलना चाहूँगा। सोशल मीडिया आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में ये व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत कॉमन, टेलीग्राम हो गया है, तो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। शेयर करते टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। हम अगर कुछ गलत चीज़ शेयर करते हैं, कुछ भी इलीगल शेयर करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जिससे कोई कुछ किसी के बारे में बुरा है या कुछ कमेंट है नेगेटिव है, तो वो इसकी एक लीगल जिम्मेदारी भी बनती है। बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ठीक है फॉरवर्ड ही किया है, मैं लिखेंगे वही से मैं तो फॉरवर्ड किया, मैं किसी ने भेजा था मैं फेसबुक पे लगा दी। ये किसी ने भेजा फेसबुक के चक्कर में कई लोग जो हैं जेल में पहुंच गए। ऐसे कुछ वाकई हो, किसी ने कुछ भेजा और उसने फेसबुक पे लगा दिया, फिर वो आदमी बोलता है कि साहब मैं तो, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो दोस्त ने भेजा लगा। अगर आप फेसबुक पे लगा रहे हो तो फेसबुक पे लगाना जो है आपके घर के बाहर वो पोस्टर, उसकी लीगल लायबिलिटी वही बनती है। अगर कुछ इलीगल चीज है आपके पास, कोई कमेंट है किसी के बारे में जिससे कि किसी कम्युनिटी को, किसी आदमी के बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज है जिससे कुछ वायलेंस हो सकता है या कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आप, इट इज इक्वल टू कि आपने घर के बाहर वो पोस्टर लगा दिया। तो जिम्मेदारी ऐसी है कि आप नहीं बोल सकते मेरे घर में कोई लगा दिया, आपकी जिम्मेदारी है। तो वो सोशल मीडिया के बारे में पर्टिकुलरली जो घर में यूथ हैं सब कुछ है, उनको थोड़ा गाइड करिए। जहाँ तक फिर से मैं वापस जाऊँगा कॉर्डन सर्च की तरफ। लास्ट वीक में कुछ वाकई हुए, आपने पेपर में देखा होगा, रेलवे स्टेशन के पास में मर्डर के केसेस हुए। उस केस में एक 20-22 साल के लड़के ने कुछ चाकू वगैरह इस्तेमाल करके मार दिया। तो कॉर्डन सर्च का एक मकसद ये भी है, इस तरह के जो लोग हैं जो थोड़ा गुमराह हुए हैं, जिनके पास अगर कोई ऐसा चाकू तलवार लेके घूम रहा है, तो इस तरह के लोगों को चेक करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना और इस तरह की चीज़ें बरामद करना, ये भी ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जैसा कि बताया कि अगर हमारे यहाँ पे सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है, अगर हमारे यहाँ पे वाइन शॉप्स वगैरह, दुकानें वगैरह नहीं हो रही, अगर लोग खुले में शराब पी रहे हैं, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, ओपन ड्रिंकिंग जो है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। आपके इलाके में कहीं भी ओपन ड्रिंकिंग होती है तो प्लीज उसको पुलिस को रिपोर्ट करिए। जहां ओपन ड्रिंकिंग होती है वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। क्यों बोले तो वहां बैठेंगे लोग, रात को शराब पी के झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ बहस होगी,
अगर कुछ लेडीज़ वगैरह उनके साथ बदतमीजी करेंगे, हो सकता है कमेंट कुछ करें, हो सकता है एक आदमी गिरता पड़ता नाले में गिर जाए, तो धीरे धीरे उस एरिया का ना माहौल ख़राब होता जाएगा। हो सकता है वहाँ लोग बैठेंगे, जुआ खेलेंगे, एक तरह का ना वो क्राइम का अड्डा धीरे धीरे बन जाता है। तो खास तौर पे जैसे कुछ खाली इलाके होते हैं, कुछ खाली प्लॉट है, ओपन एरियाज है, थोड़ा बाहर का रास्ता है, नाले के पीछे, इस तरह के कई इलाके होते हैं आसपास में। तो अगर आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो प्लीज़ आप 100 डायल करके बोल सकते हैं, नहीं तो हमारा स्पेशल ब्रांच कंट्रोल का नंबर वगैरह वहाँ पे आप कभी भी इतला नहीं तो डायरेक्टली हमको बता सकते हैं। लेकिन वो एक क्रिमिनल जो है वो कितने लोगों को परेशान करता है आपने देखा, एक छोटा इंसिडेंट हो जाता है तो कितनी बड़ी उसकी खबर बन जाती है, एरिया का नाम भी खराब हो जाता है। तो कॉर्डन सर्च का जो मकसद है, अगेन कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, वो मिलके चलना है। अभी अब जैसे ये मीटिंग है तो मैं अगर ఉదయం 5 నుంచి 5 నుంచి 7 గంటల వరకు 2 అవర్స్ నిజామాబాద్ 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బర్కత్పుర, బురుడుగలి మరియు గాజుల్పేట ఏరియాలో కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో టోటల్ 9 సర్చ్ టీమ్స్తో పాటు 214 పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. దీంట్లో 1 కమిషనర్ అంటే నేను, అడిషనల్ డీసీపీ 1, 4 మంది ఏసీపీలు, 10 మంది సిఐలు, 18 ఎస్ఐలు, 30 మంది ఏఎస్ఐ హెడ్ కానిస్టేబుల్, అరౌండ్ 100 కానిస్టేబుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ 30 ఉమెన్ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ ఏఆర్ పార్టీ అబౌట్ 30 మెంబర్ టోటల్ పాల్గొన్నారు. టోటల్ 214 ర్యాంక్స్. ఈ ఆపరేషన్లో మొత్తం సర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఏరియాలో ఉన్న సస్పెక్ట్స్ కానీ రౌడీస్ కానీ వాళ్ళకి కూడా చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. దీంతోపాటు పబ్లిక్లో ఎక్కడెక్కడ మన పబ్లిక్లో ప్రతి గలీలో పబ్లిక్తో మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్య ఏమున్నది, తర్వాత ఎక్కడైనా బయట వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, తర్వాత సస్పెక్ట్ అనుమానిత వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా, తర్వాత ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడైనా క్రైమ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్న దాని గురించి కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కంప్లీట్లీ మనకి పబ్లిక్ సహకారంతోనే జరిగింది. 100% పబ్లిక్ ఆపరేషన్ మాకు ఉన్నది. పర్టికులర్లీ ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎల్డర్స్ మరియు కమ్యూనిటీ లీడర్స్ మాతోనే తిరిగి మాకు కూడా గైడ్ చేస్తున్నారు. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్ టోటల్ 1 4-wheeler, 1 car, 6 2-wheelers, 4 ఆటో సీజ్ చేయడం జరిగింది. 66 2-wheelers, 4 ఆటో సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ సస్పెక్ట్ 5 మంది కూడా మనం ఇంటరాగేషన్ చేస్తున్నాము. సో పర్టికులర్లీ ఈ వెహికల్ గురించి ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఎందుకు లేవు కానీ నంబర్ ప్లేట్ ఎందుకు లేవు దాని గురించి కూడా దర్యాప్తు చేస్తాము. ఏదైనా మనకి సస్పెక్టివ్ వెహికల్ కానీ స్టోలన్ వెహికల్ ఉంటే దానికి డీటెయిల్గా యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ దానికి కూడా మనం ఎంక్వైరీ చేద్దాము. సో ఈ కార్యక్రమం ఎండ్లో ఇక్కడే మన ఈ ఏరియాలో ఒక పబ్లిక్తోనే చిన్న మీటింగ్ జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో తెలంగాణ పోలీస్ తరఫున ఉన్న కొత్త ఇనిషియేటివ్స్, పబ్లిక్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ మరియు టెక్నాలజీ ఇన్ పోలీసింగ్ మరియు బెటర్ పోలీసింగ్ అంటే తొందరగా అంటే పోలీస్ రెస్పాన్స్, డయల్ 100లో వచ్చిన చేంజెస్, తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ రిసెప్షన్లో ఉన్న చేంజెస్ దాని గురించి కూడా ఒక మాట్లాడడం జరిగింది. అండ్ కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ కెమెరాస్ మరి నేను సైతం గురించి కూడా మన ప్రజలకి కొద్దిగా అవగాహన ఇచ్చినాము. అంటే ఎట్లా మన సీసీటీవీ కెమెరా పెడితే చాలా వరకు మనం నేరం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా మన లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ భద్రత కోసం కూడా మనం అందరు కలిసి పనిచేయాలి, దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ అయింది. సో పబ్లిక్కి మంచి సపోర్ట్ ఉంది. దీంట్లో చాలామంది అంటే వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. భవిష్యంలో ఇంకా పబ్లిక్ మాతోనే ఇంకా మంచి కోఆపరేషన్, మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది, అది మేము ఆశిస్తున్నాము. అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా మేము అది ఆశిస్తున్నాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లోకల్ ఎస్ఐకి, ఇన్స్పెక్టర్కి నాకు రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఇంకా పబ్లిక్తోనే కొద్దిగా సీసీటీవీ కెమెరా అవేర్నెస్ కూడా పెట్టాల్సింది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పరంగా ఇప్పుడు మన పోలీసింగ్లో, పోలీస్ పబ్లిక్ రిలేషన్లో టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. ఆ టెక్నాలజీ తోటి మనం బెటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ బెటర్ సర్వేలెన్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేయాలి. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఏసీపీ నిజామాబాద్, ఇన్స్పెక్టర్ టౌన్ and Sub-Inspector 2 Town and all officers for this planning and conducting this operation. Thank you very much.